Hello students, welcome to our channel Eduscription. We are in the third lecture series of engineering mechanics in chapter 2, first part of moment of force. It's a very conceptual chapter in your mechanics. Here we will study regarding moment of force, Varignon's theorem, couple of moment and steps to solve the problems. Now we'll start moment of force. It is the second chapter of the engineering mechanics. So moment of a force. So moment हमें क्यों पढ़ना चाहिए? If you'll have seen that जो भी हम जितने भी problems हम पहले chapter से बनाए by the help of the resolution of forces, वहाँ पे सारे दो unknowns होते थे, two unknowns. So fx and fy से solve हो जाता था. Sigma fx and fy से दो unknown दो equation से solve हो जाता था. What about if there will be three unknown? तब तुम्हें काम आएगा मोमेंट का. ओके, सो दिस इज द अर्जेंट. सो जब भी हम प्रॉब्लम बनाएंगे अगर तीन अननोन है देन वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द मोमेंट. ओके, सो मोमेंट कब आता है ना? इट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट ए पॉइंट. सो मोमेंट कब आता है ना? किसी भी बॉडी में मैं अगर कुछ फोर्स देता हूँ, वो अगर रोटेट करना स्टार्ट करता है then the moments comes into the picture. So simply moment क्या है? The moment है बॉडी को रोटेट करता है. It is the rotational effect of the force about a point. रोटेट करता है. चाहे तुम if I'll take an example, डोर अगर तुम क्लोज करते हो तो उसमें क्लैम्प क्या होता है? वो रोटेट करना स्टार्ट करता है. ओके, if I'll apply the force. ओके, so moment defined as the product of किसका ना? magnitude of force and perpendicular distance of a point from the line of action of the force. So moment is defined as the product of किसके? magnitude of force और perpendicular distance के साथ. Okay, so if I'll see there is a F force is acting on this line where O is the point. So moment of O due to F will be how much? Force into perpendicular. So force into perpendicular is how much? This is perpendicular distance AO. ओके, जैसे हम सिग्मा एफ एक्स में एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस निकालते थे, सिग्मा एफ वाई में अपवर्ड फोर्सेज इज इक्वल टू डाउनवर्ड निकाल के साइन कन्वेंशन करते थे, वैसे ही मोमेंट में तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज करके साइन जो प्लस माइनस साइन कन्वेंशन आपको करना होता है. ओके, सो दिस इज मोमेंट ऑफ ए फोर्स. ओके, now the graphical representation of the moment of a force about a point. So graphically हम represent कैसे करते हैं यहाँ पे देखते हैं. Okay, so the if you'll see this triangle OAB, okay, OAB is the triangle and F is the magnitude of the force of AB, then moment of force F about O will be how much? The moment of O will be force into perpendicular distance is how much? OC. So F into OC. So just I multiplied 2 cross 1 by 2 into, in place of FB because it is the magnitude of AB, so I'm writing AB into OC. So half AB into OC, half AB into OC, half base into height will give you the area of triangle OAB. So इससे मुझे पता चला so the moment of a force about a point is twice the area of the triangle. तो इससे हमें पता चला कि moment about a point in a triangle will be how much? No, it will be ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ये हमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वेरिग्नन्स थ्योरम में. ओके, सिंपली आपको याद रखना है कि इन ए ट्राइंगल फ्रॉम ए पॉइंट इफ आई टेक द मोमेंट इट विल बी ट्वाइस द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल. ओके, अब चलते हैं वेरिग्नन्स थ्योरम मोमेंट. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ. मैकेनिक्स में अगर जो थ्योरी बोला जाता है तो ये है एक थ्योरी है जो आते रहता है कि प्रूफ करो वेरिग्नन्स थ्योरम ऑफ मोमेंट. ओके, सो व्हाट इज वेरिग्नन्स थ्योरम? थ्योरम ऑफ मोमेंट दैट इट स्टेट्स दैट इफ ए नंबर ऑफ coplanar forces acting on a particle are in equilibrium, then the algebraic sum of their moments about any point is equal to the moment of their resultant forces about the same point. अगर सिंपल में बोला जाए, वेरिग्नन्स थ्योरम कहता है कि अगर एक पॉइंट में अगर एक जगह पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सपोज मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, अगर हम इंडिविजुअल सबका मोमेंट निकाल के अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो ये किसके साथ बराबर होगा ना? ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट के मोमेंट के साथ सेम होगा. दैट इज वेरिग्नन्स थ्योरम ऑफ मोमेंट. सो
at an particle, their number of coplanar forces, if will sum of all the moment of coplanar forces will be equal to the moment of the resultant of their force passing through that same point. Okay, so proof के लिए we have taken A, D, C, B, where P is the force, Q is the two force, Q is a force, P is a force, and R is the resultant of these two forces. Let's consider force P and Q acting at point A and their resultant is R. Okay, let O be the moment center in the plane. We have to prove, so we have to prove that moment of R will be equal to sum of moment of P and Q about the same center O. तो अगर थ्योरम मुझे प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना है कि मोमेंट ऑफ आर कितना होगा, द मोमेंट ऑफ पी अबाउट ओ प्लस मोमेंट ऑफ क्यू अबाउट ओ इज विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ आर अबाउट ओ. ओके, अब चलते हैं. सो मोमेंट ऑफ पी अबाउट ओ, अगर मैं लेता हूं मोमेंट ऑफ पी अबाउट ओ विल बी पी, ये रहा P फोर्स और ये रहा O, तो कितना होगा ना, ट्वाइस द ट्राइंगल AOB, ट्वाइस द ट्राइंगल AOB. वैसे ही मोमेंट ऑफ Q अबाउट O विल बी, मोमेंट ऑफ Q अबाउट O विल बी AOD, so triangle AOD. Now sum of the moment of P and Q about O will be, taking 2 as a common, area triangle AOB plus area triangle AOD. Now see, AOB will be equal to ABC because they are similar triangle. So I am writing in place of AOB ABC plus area of AOD. Now see, ABC is similar with ACD. So this is triangle ADC plus triangle AOD. Now see, ACD plus ADO will give you the bigger triangle ACO or OAC, twice the area of OAC. So OAC अगर ट्राइंगल देखो वहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, R आ रहा है. So it will be the moment of R about O. So twice the area into triangle OAC will be moment R about O. So thus Varignon's theorem is proved. So यहाँ से proved हो गया because in the bigger triangle AOC में तुम्हारा R है 0 है. So this is the moment of R about O. So hence it is proved. Okay, so this is the Varignon's theorem of the moment. ओके, इट्स इंपॉर्टेंट वन. ये डायग्राम तुम्हें बनाना है और ये चीज़ लिख के तुम्हें प्रूफ करना है. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इज टर्म एज अ कपल. ओके, सो व्हाट इज कपल किसे कहते हैं ना, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट फॉर्म ए कपल. कपल का फॉर्म करता है ना इक्वल एंड ऑपोजिट. देखो यहां से अच्छे से, ये एक फोर्स है एफ, ये एक फोर्स है एफ, बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर लाइन ऑफ एक्शन, देन दे विल फॉर्म ए कपल. Okay, the perpendicular distance between the lines of action of two parallel forces is known as arm of the couple. ये दो जो फोर्स हैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हैं, दोनों के बीच में जो लाइन ऑफ एक्शन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने के बाद जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट इज डी इज टर्म एज अ आर्म ऑफ द कपल उसे कहते हैं. ओके, सो डी इज कॉल्ड एज द आर्म ऑफ द कपल और डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. Okay, now moment of couple na, it is defined as the product of one of the forces forming the couple and the arm of couple. So moment of couple क्या है ना, suppose here is a force like this one and it is like this one, so it will be F and this distance is D. So any one force here also, कोई एक भी force ले लो, F into the distance is D, this is known as the moment of couple. So couple किसे कहते हैं ना, two equal and opposite forces whose line of action are different form a couple. arm of couple किसे कहते हैं ना, दोनों के बीच में जो distance है. ओके, एंड मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं ना एनी वन फोर्स, बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम है, एनी वन फोर्स इनटू डी विल गिव यू द मोमेंट ऑफ कपल. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट. ओके, अब चलेंगे हम मोमेंट के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे. सो अब हम बात करेंगे कैसे हम मोमेंट का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर मोमेंट के लिए हम कैसे करेंगे. सो स्टेप्स
क्या क्या हैं, क्या क्या रूल्स हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेके ये चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट द रिएक्शन एट ओ पॉइंट में तुम्हें रिएक्शन निकालना है। ये क्रैंक लीवर एक स्ट्रक्चर है। ओके, दिस इज एफ फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी जो ओ पॉइंट से 8 mm दूर में है। ओके, एंड ओ ए डिस्टेंस इज 10 mm एंड 50 न्यूटन इज द फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट ए। ओके, सो वी नो दैट इट इज़ एन हिंज जॉइंट। सो यहाँ पे दो फोर्स एक्ट करेगा। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, सो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड जॉइंट्स में वेरेवर तुम्हें हिंज मिले, फिक्स मिले, वहाँ पे हॉराइजॉन्टली एंड वर्टिकली दो फोर्स कंसिडर किया जाता है, और जहाँ पे रोलर रहता है वहाँ पे एक फोर्स कंसिडर किया जाता है। ओके, सो इफ विल सी यहाँ पे अगर देखो तो कुल मिला के खुद का वेट इज द सेल्फ वेट इज नॉट गिवन। सो 50 वाई ओ एक्स ओ एंड एफ। सो कुल मिला के 4 फोर्सेस हैं, 4 में से 3 अननोन हैं। सो 3 अननोन्स हैं। हमें पता है रिजोल्यूशन फोर्सेस में सिर्फ 2 इक्वेशंस होते हैं, सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ वाई। सो वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ओनली बाय द रिजोल्यूशन फोर्सेस, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ मोमेंट। तब मुझे पता चला अब मुझे मोमेंट निकालना है। सो मैंने लिखा मूवमेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि व्हिच पॉइंट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मूवमेंट। किस पॉइंट का हम मूवमेंट निकालेंगे, ए पॉइंट, ओ पॉइंट, ना बी पॉइंट। ना फर्स्ट नोट करना ना, चूज ए पॉइंट वेयर मैक्सिमम अननोन फोर्सेस आर एक्टिंग। मैक्सिमम अननोन फोर्सेस जहां पे एक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम अननोन इज एट पॉइंट ओ। ओके, सो मैं लिखा मोमेंट एट ओ इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा इक्वेशन को। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट का मोमेंट तुम फाइंड आउट करोगे द फोर्सेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट विल बी कंसिडर एज 0। जिस पॉइंट का तुम मोमेंट निकालोगे, जो जो फोर्स उस पॉइंट में पास करेंगे उसका वैल्यू होगा, इट विल बी कंसिडर एज 0। ओके, उसका वैल्यू कंसिडर किया जाएगा 0। This is 30 degree it is given. Okay, this is 0. Okay, so मेरा XO 0 हो गया, YO 0 हो गया। Okay, so remaining is 50 and this F. Okay, अब मैं इक्वेशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। Okay, I will start from 50. What my moment says that force into perpendicular distance. अब ये फोर्स को मैं अगर ऐसे स्ट्रेट करता हूँ वर्टिकली, ये मेरा हो जाएगा 50 साइन 60, और इसको मैं अगर हॉराइजॉन्टली रखता हूँ ये हो जाएगा 50 कॉस 60. Okay, now see 50 cos 60 is passing through that point, so this value will be this value will not consider, it will consider as 0. Okay, now 50 sin 60 is perpendicular to this point, so it will be 50 sin 60 into the distance is how much, 10. Okay, अब देखो, अब हमें देखना है whether it is anti clockwise या clockwise. If we'll see this is this side, so it is a clockwise, so ये equation हुआ clockwise. Okay, that will be equal to, now I'll go for F point. Okay, अब मैं F को अगर इस तरफ रिजॉल्व करता हूँ तो ये होगा F cos 30, अगर वर्टिकली करूँ तो हो जाएगा F sin 30. Now see F sin 30 is passing through that point O, so it will not consider. F cos 30 perpendicular हुआ O को, so it will be F cos 30 into distance is how much, 8, and it is what, it is anti clockwise. anti clockwise के लिए मैंने इस साइड रखा हुआ है, आप इसको माइनस इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे जानोगे, उसका एक ट्रिक्स है। जिस पॉइंट का आप मोमेंट निकाल रहे हो, सपोज ये एक फोर्स है, ये देखो ये फोर्स ऐसे घूम के भी इस साइड ओ पे आ सकता है, ऐसे घूम के भी आ सकता है। ओके, तुम्हें हमेशा सबसे शॉर्ट जो रास्ता है, जो शॉर्टकट है, जो सबसे कम सर्कल घूमेगा, उसी को हमेशा कंसिडर करना। तो ये ऐसे इसको नज़दीक पड़ेगा, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ये 50 है, 50
तो ये इसको पास पड़ेगा या ऐसे दूर पड़ जाएगा, सो ये पास पड़ेगा, सो इट इज एन क्लॉकवाइज, सो ऐसे घूम रहा है ये क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ से आपको एफ मिल जाएगा, एफ विल बी 50 साइन 60 इंटू 10 by 8 cos 30. So you will find out the f का value. So this is the procedure how you will find out the मोमेंट। ओके, सो ऐसे ही ये चीज आपको देखना है, आपको पहले देखना है कितने अननोन फोर्सेस हैं, चूज ए पॉइंट वेयर मैक्सिमम अननोन फोर्सेस आर एक्टिंग, और जिस पॉइंट का मोमेंट निकालोगे द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट विल कंसिडर एज जीरो। ओके।